ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कि जो म्यांमार में मिलिट्री कूप हुआ है 2021 में, उसकी वजह से देर वाज अ प्रोलॉन्ग्ड सिविल वॉर टिल लाइक अगर हम 2026 की भी बात करें तो अभी भी वहां पे सिविल वॉर चल रहा है। तो व्हाट इज द इंटरनेशनल रेस्पॉन्सेस, लाइक अदर कंट्रीज ने उस घटना पे कैसे रिएक्ट किया, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल रेस्पॉन्सेस जिसमें हम देखेंगे कि अलग अलग कंट्रीज का जो सुपर पावर्स हैं, ग्लोबल पावर्स हैं, लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, चाइना, उनका अलग रेस्पॉन्स हमको देखने को मिला। तो यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन ने तो पूरी तरीके से सैंक्शंस लगा दिया। वेस्ट ने जो मिलिट्री रूल है इन म्यांमार उसका जमकर विरोध किया एंड सैंक्शंस लगा दिए। एंड वहीं चाइना ने मिलिट्री का सपोर्ट किया, क्योंकि चाइना म्यांमार के साथ दुश्मनी नहीं मोड़ सकता है। चाइना के काफी इन्वेस्टमेंट्स मौजूद हैं। देर आर मेनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऑफ चाइना इन म्यांमार। बिकॉज ऑफ दैट चाइना हैज टू सपोर्ट द military rule so that the ongoing projects may still continue। एंड हम ये भी देखेंगे कि भारत का क्या रिस्पॉन्स रहा, भारत ने किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया जो कूप हुआ म्यांमार में, मिलिट्री कूप इन 2021। सो देर वाज अ डाइवर्जिंग जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट वेर इन like different powers, they reacted differently. So the West, that is the United States and European Union, it used the economic sanctions, the financial war to cripple the Janta, while the US and EU use financial warfare, that is the economic sanctions, to cripple the Janta, the military Janta। बीजिंग एंड न्यू दिल्ली ने एक अलग ही रुख अपनाया, जहां पे कि दे एंगेज्ड डायरेक्टली with both the military regime and also the ethnic armed organization, people defense forces, to protect their borders, trade routes, and national security interests. So while the United States and European Union use financial warfare to cripple the Janta, Beijing and New Delhi, they adopted a pragmatic approach. So Beijing and New Delhi, they engage directly with both the military and also the ethnic rebels, the armed resistances। So the military regime in Myanmar जो अभी पावर में है, and also the ethnic rebels, to protect their borders, to protect their borders, trade routes and national security। तो हमने देखा कि अगर हम म्यांमार की जो इंटरनल सिचुएशन है 2021 में, जो मिलिट्री कूप हुआ, मिलिट्री रूल जहाँ पे कि क्वासी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बनने नहीं दिया गया, तो उस घटना का इंटरनेशनल रिएक्शन क्या रहा। तो हमने देखा कि वेस्ट, दैट इज द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन ने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए, दे यूज द फिनेंशियल वारफेयर टू क्रिपल द जनता, टू आइसोलेट द जनता। एंड on the other hand, Beijing and New Delhi, they engaged directly with both the military regime also and ethnic rebels also, including the National Unity Government, which is like the Democratic Front, which is operating like a shadow government. And the reason for that was to protect their borders, trade routes, and national security. So we can see the international responses, they are demonstrating the diverging geopolitical interest। So now we will be, हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं यूएस एंड यूरोपियन यूनियन का जो स्टैंस है।
sanctions and isolation, financial warfare, economic sanctions. So United States and European Union. So sanctions and isolation. So if we talk about the stance, like जो military coup हुआ, military rule in Myanmar, what is the stance of United States and European Union? So they strongly opposed the coup. So there was a strong condemnation of the coup, of the military coup in Myanmar. And also there was a support for democratic restoration. Like the जो वेस्ट है वो डेमोक्रेटिक रिस्टोरेशन को सपोर्ट करना चाहता था. तो सपोर्ट फॉर डेमोक्रेटिक रिस्टोरेशन. So the Western strategy, it focuses on starving the military junta, that is the state state administration council SAC, state administration council. So starving the state administration council of financial resources and international legitimacy and international legitimacy. तो बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ने एंड यूरोपियन यूनियन लाइक वेस्ट वेस्ट ने आखिरकार किया क्या टू स्टार्व द मिलिट्री जनता ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस एंड इंटरनेशनल लेजिटिमेसी. सो इट डिड लाइक it targeted conglomerates. So the West started targeting the conglomerates in Myanmar. So there were conglomerates which were backed by the military junta. So West started targeting conglomerates. So the sanctions of the West, it specifically targeted MEHL, that is Myanmar Economic Holdings Public Company Limited, MEHL. तो अगर हम वहाँ पे कॉन्ग्लोमरेट्स की बात करें तो MEHL एक बहुत बड़ा प्लेयर है. इट्स लाइक अ बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट. एंड वी ऑल्सो हैव MEC, दैट इज द म्यांमार इकोनॉमिक कॉरपोरेशन. तो वेस्ट ने इन्हीं कॉन्ग्लोमरेट्स पे सैंक्शंस लगाया. म्यांमार इकोनॉमिक कॉरपोरेशन MEC. एंड ये जो भी कॉन्ग्लोमरेट्स हैं दे आर military run monopolies. They are backed by the military junta. So these military run monopolies, it control key industries. ये जो conglomerates हैं they control, so they are backed by the military and they control key industries like banking, mining, tobacco, telecom. क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न यही हमारे सामने आता है कि भाई मिलिट्री जो है, मिलिट्री जनता, अब वो टैक्स तो ले नहीं रही है लोगों से, तो वो सरवाइव कैसे कर रही है, उसको फंड कहाँ से मिल रहा है? क्योंकि कोई भी सरकार जो है वो लोगों के टैक्स से ही सरवाइव कर पाती है, उसी से तो सारा ऑपरेशंस होता है. तो मिलिट्री जनता जो है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल. So military junta is basically controlling the key industries in Myanmar like banking, mining, tobacco, telecom through conglomerates, through some public company limited corporations. And these conglomerates which are controlling the key industries, they are funneling profit. They are funneling profits directly into the military budget. तो वेस्ट ने कॉन्ग्लोमरेट्स को टारगेट किया. उसके साथ साथ वेस्ट it started choking the jet fuel supply. So to impose international sanctions on the military junta, West, that is United States and European Union, it started choking jet fuel supply. So to curb
devastating Janta air strikes on civilians. To curb devastating Janta air strikes on civilians, the United States and European Union, they have they have systematically sanctioned international and domestic entities, international and domestic entities involved in the import, storage and distribution, import, storage and distribution of the aviation jet fuel to म्यांमार. तो वेस्ट ने क्या किया कि जो भी डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एंटिटीज जो कि म्यांमार को एविएशन जेट फ्यूल सप्लाई करती थी, तो वेस्ट ने उन एंटिटीज पे, उन कंपनीज पे, उन ऑर्गेनाइजेशंस पे सैंक्शंस लगा दिया. सो द वेस्ट systematically sanctioned international and domestic entities which are involved in the import, storage and distribution of aviation jet fuel to the Myanmar. And the reason is to curb the devastating Janta airstrikes on civilians. So on the grounds of human rights. And West ने, like especially United States ने एक एग्रीमेंट भी साइन किया है, द यूएस बर्मा एक्ट. So integrated into the National Defense Authorization Act, the US Burma Act, it legalizes direct non-committal communication with the anti-Janta National Unity Government and ethnic armed organizations. तो बेसिकली द यूएस बर्मा एक्ट का मतलब ये है कि ये जो एक्ट है, इट लीगलाइजेस द यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट, यूनाइटेड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन टू एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट्स विद द नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट which is a shadow government operating in the Myanmar, and ethnic armed organizations operating in the Myanmar. And national जो यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार है, इट कैन फंड नॉन लेथल एड लाइक कम्युनिकेशन गियर्स, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड क्रॉस बॉर्डर humanitarian assistance to the ethnic armed organizations and national unity government in Burma as per the US Burma Act. तो अगर हम यूएस बर्मा एक्ट की बात करें, तो सबसे पहले तो ये जो एक्ट है, इट इज इंटीग्रेटेड इनटू द नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट. इट इज इंटीग्रेटेड इनटू द नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट. एंड द यूएस बर्मा एक्ट, it legal it legalizes direct non-committal communication with the NUG and EAO, that is the National Unity Government in Myanmar, and Ethnic Armed Organizations, EAO. And the US Burma Act, it also funds non-lethal aid like communications gear, capacity building. And it the US Burma Act, it also funds क्रॉस बॉर्डर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस. तो हमने देखा कि किस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ने बर्मा के साथ एक लीगल एग्रीमेंट कर रखा है, जिसके तहत जब भी बर्मा पे कोई भी आपदा आएगी, तो यूनाइटेड स्टेट्स उसको आगे बढ़ के मदद करेगा. सो द यूएस बर्मा एक्ट it is integrated into the National Defense Authorization Act, जिसके तहत this act legalizes the direct non-committal communication with the NUG and EAO. क्योंकि म्यांमार में अभी एक तरीके का खतरा है, वहाँ की डेमोक्रेटिक सरकार बनी नहीं, वहाँ पे मिलिट्री रूल है. तो यूनाइटेड स्टेट्स एज द लीगल अथॉरिटी एज पर द यूएस बर्मा एक्ट की, it can establish communications with National Unity Government, which is the shadow government, and the ethnic armed organizations
in Myanmar, the United States can also fund non-lethal aid like communication gear, capacity building, and it can also fund cross-border humanitarian assistance. तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो 2021 में मिलिट्री कूप हुआ म्यांमार में, सो व्हाट वाज द इंटरनेशनल रेस्पॉन्सेस फॉर दैट। तो हमने वेस्ट का रिस्पॉन्स देखा, तो वेस्ट में हमने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन दे लॉन्च्ड अ फाइनेंशियल वारफेयर टू क्रिपल द जनता। उन्होंने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए, उन्होंने कूप का विरोध किया, एंड उन्होंने डेमोक्रेटिक रिस्टोरेशन की का सपोर्ट किया। तो वेस्ट ने सबसे पहले क्या किया, दे स्टार्टेड टारगेटिंग द कॉन्ग्लोमरेट्स विच आर मिलिट्री बैक्ड businesses which controlled key industries like banking, mining, tobacco, telecom, and these conglomerates were funneling profits directly into the military budget. तो वेस्ट ने सबसे पहले इन पे सैंक्शंस लगाया। उसके बाद ऑल द इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक एंटिटीज विच वेर सप्लाइंग एविएशन जेट फ्यूल टू म्यांमार, उन पे सैंक्शंस लगाया। एंड यूएस बर्मा एक्ट के तहत यूनाइटेड स्टेट्स ने बर्मा को मदद भी पहुंचाई by funding the cross border humanitarian assistance, by funding capacity building and communications gear. So this was the response of the west. अब हम डिस्कस करते हैं चाइना का क्या रेस्पॉन्स रहा। सो चाइना बेसिकली इट फॉलोड अ pragmatic engagement एंड स्टेबिलिटी, जहाँ पे चाइना ने जो मिलिट्री रूल है, मिलिट्री जनता है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल इन म्यांमार, उसके साथ अपने संबंध अच्छे बनाए रखे। सो द स्टांस ऑफ चाइना, तो चाइना का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, मेन गोल था, दैट वाज बॉर्डर स्टेबिलिटी। सो चाइना इट प्रायोरिटाइजेस बॉर्डर स्टेबिलिटी, चाइना प्रायोरिटाइजेस द प्रोटेक्शन ऑफ its massive economic assets, and China prioritizes keeping Western influence away from its southern border, क्योंकि चाइना कभी नहीं चाहेगा कि जो चाइना के सदर्न बॉर्डर्स हैं विद द म्यांमार, वहाँ पे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हो। एंड बिकॉज ऑफ दीज रीजंस चाइना मेंटेन्ड अ पीसफुल रिलेशन with military junta, state administration control. So the main objective of China, the main priority of China was border stability, protection of its massive economic assets in Myanmar, and keeping the Western influence away from its southern border. And इन प्रायोरिटीज को अचीव करने के लिए चाइना अडॉप्टेड द डुअल ट्रैक पॉलिसी। क्योंकि देखो बात ऐसी है कि अगर आप म्यांमार के इंटरनल सिचुएशन की बात करते हैं, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि म्यांमार में ना केवल मिलिट्री जनता को खुश रखने की जरूरत है, बल्कि शैडो गवर्नमेंट, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट एंड ऑल्सो एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस, पीपल डिफेंस फोर्सेस, इन लोगों को भी खुश रखना इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वहां पे मिलिट्री जनता ने अपनी पावर काफी हद तक लूज कर दी है। तो अगर म्यांमार में हमको चाहते हैं कि वहां से सपोर्ट मिले, सो देर इज अ नीड to establish good relations not only just with the military junta but also with the shadow government and ethnic rebel groups. तो सो दैट इज अ डुअल ट्रैक पॉलिसी, जहाँ पे चाइना ने मिलिट्री जनता के साथ भी अच्छे संबंध बनाए और एथनिक रेबल ग्रुप्स के साथ भी अच्छे संबंध बनाए। सो चाइना एक्ट्स एज द जनता's primary diplomatic shield at the UN Security Council while remaining its top heavy weapons supplier. Weapons supplier.
तो बेसिकली मिलिट्री जनता को सपोर्ट करने के लिए चाइना ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में डिप्लोमेटिकली मिलिट्री जनता का सपोर्ट किया. चाइना एक्टेड लाइक द डिप्लोमेटिक शील्ड. इट शील्डेड द मिलिट्री जनता फ्रॉम द अपोजिशन. एंड ऑल्सो चाइना रिमेन्ड द टॉप हैवी वेपन सप्लायर. तो जनता के पास जो भी वेपन्स आ रहे हैं मिलिट्री जनता के पास, उसमें चाइना का भी बड़ा योगदान है. एंड साइमल्टेनियसली चाइना ऑल्सो negotiated directly with the powerful northern ethnic armed organizations. तो दोनों पक्षों के साथ चाइना ने नेगोशिएट किया. सो दैट इज अ डुअल ट्रैक पॉलिसी. सो साइमल्टेनियसली बीजिंग bypasses the जनता to negotiate directly with the powerful northern ethnic armed organizations like the United Alliances Forces. अब चाइना के सामने एक और बहुत बड़ा चैलेंज था, दैट इज प्रोटेक्टिंग द चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर. तो जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है वहाँ पे इन द रिसेंट ईयर्स वी आर सीइंग जियोपॉलिटिकल टेंशन. क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ मलक्का को ब्लॉक कर दिया जाए तो चाइना को बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ेगा. क्योंकि साउथ चाइना सी के अराउंड यूनाइटेड स्टेट्स के भी नेवी प्रेजेंस है, तो वहाँ पे डिस्टरबेंसेस है, वहाँ पे फ्रिक्शन है. तो उससे बचने के लिए चाइना ने क्या किया, म्यांमार में CMEC बनाया. दैट इज चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर. तो इट इज बेसिकली अ रोडवे विच इज कनेक्टिंग द पोर्ट ऑफ म्यांमार टू द यांगॉन प्रोविंस ऑफ चाइना. तो एक रोड बनाई है. एंड उस रोड के अलोंग दो पैरेलल पाइपलाइन भी बिछाई है. तो आइडिया ऐसा है कि बे ऑफ बंगाल जहाँ पे कि उतना ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं है, तो वहाँ पे म्यांमार के पोर्ट में शिप्स क्या करेंगी, जो भी एनर्जी है उसको अनलोड करेंगे. एंड फिर वहाँ से फिर वो CMEC के थ्रू चाइना पहुँचाया जाएगा. सो दिस इज लाइक अ मैसिव प्रोजेक्ट of China in Myanmar, China Myanmar Economic Corridor, and protecting it is a very big priority of China. So, CMEC is a crucial component of Belt and Road Initiative, BRI, Belt and Road Initiative. So, CMEC, it features so दो pipeline, parallel pipeline. So, one is the gas pipeline, one is the oil pipeline. So, it features oil pipeline and gas pipeline running from Myanmar's coast directly into Yunnan province of China, allowing China to bypass the contested Malacca Strait. So that's the concept of CMEC. तो CMEC बनाने का मेन पर्पस यही था, टू बाईपास दी मलाक्का स्ट्रेट. एंड उसको बचाना चाइना का बहुत बड़ा एक टॉप प्रायोरिटी है. एंड वाई म्यांमार इज इम्पोर्टेंट फॉर चाइना, like why China is following a pragmatic approach, because of Indian Ocean deep sea access. चाइना चाहता है एक्सेस टू इंडियन ओशन. एंड वो जब भी संभव होगा जब म्यांमार उसको सपोर्ट करेगा चाइना को. सो इंडियन ओशन डीप सी एक्सेस. सो बेसिकली चाइना इज हेविली इन्वेस्टिंग इन द Huaqiao deep sea port, and also China is heavily investing in special economic zones. So this gives these investments Beijing
a direct commercial and potential naval gateway naval gateway into the Indian Ocean। तो हमने देखा कि किस तरीके से चाइना ने प्रैग्मेटिक अप्रोच अडॉप्ट किया, जहाँ पे कि इट फॉलोड द डुअल ट्रैक पॉलिसी, जहाँ पे चाइना ने मिलिट्री जनता के साथ भी बना के रखा एंड वहाँ के जो एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट है, शैडो गवर्नमेंट, उसके साथ भी अच्छे संबंध बना के रखा। द रीजन वॉज टू प्रोटेक्ट द मैसिव इकोनॉमिक एसेट्स like the CMEC, China Myanmar Economic Corridor, Quackfio Deep Sea Port, and some special economic zones to protect the borders and to keep Western influence away from its southern border. China has to follow the pragmatic engagement. So that was the international response. That was the response of China to the internal situation in Myanmar, the 2021 military coup. अब हम भारत का रेस्पॉन्स देखते हैं। तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने भी प्रैग्मेटिक अप्रोच फॉलो किया है, जस्ट लाइक चाइना। सो इंडिया ऑल्सो अडॉप्टेड अ प्रैग्मेटिक, मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच, आइडियोलॉजी से परे। सो इंडिया फॉलोड अ प्रैग्मेटिक एंड डुअल ट्रैक एंगेजमेंट, जहाँ पे भारत सरकार ने वहाँ की मिलिट्री जनता के साथ भी संबंध बनाए रखे एंड वहाँ पे जो आर्म्ड रेजिस्टेंसेस हैं उनके साथ भी अच्छे संबंध बना के रखे। सो दैट इज अ डुअल ट्रैक एंगेजमेंट, जस्ट लाइक चाइना। तो अगर हम स्टांस की बात करें, भारत का क्या स्टांस रहा? सो इट इज ड्रिवन बाय इट इज ड्रिवन बाय immediate national security. It was driven by counter insurgency requirements and it was driven by infrastructure preservation। देखो, अगर हम भारत के स्टैंस की बात करें तो भारत ने सबसे पहले तो म्यांमार में काफी अच्छा निवेश कर रखा है ऑन प्रोजेक्ट्स लाइक ट्राइलैटरल हाईवे फ्रॉम दिल्ली टू बैंकॉक, इन प्रोजेक्ट्स लाइक कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट विच इज एक्टिंग लाइक अ शॉर्टकट। अगर हमको जो सेवन सिस्टर्स हैं, तो कोलकाता से वी कैन डायरेक्टली रीच टू सिक्किम वाया दिस कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट। तो भारत के काफी सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं म्यांमार में, उसको बचाना एक टॉप प्रायोरिटी है भारत की। उसके साथ साथ इंडिया शेयर्स बॉर्डर विद म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। सो दीज स्टेट्स दे शेयर बॉर्डर विद म्यांमार। सो नेशनल सिक्योरिटी की भी यहाँ पे बात आ जाती है एंड काउंटर इंसर्जेंसी रिक्वायरमेंट्स, जो वहाँ पे रेबल ग्रुप्स इनफिल्ट्रेट करके जो टेंशन क्रिएट करते हैं, उससे भी लड़ना है। सो दीज आर लाइक द टॉप प्रायोरिटीज ऑफ इंडिया व्हेन वी टॉक अबाउट म्यांमार। सो दैट्स व्हाई न्यू दिल्ली इट रिजेक्ट्स द वेस्टर्न पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन। जो न्यू दिल्ली है, इट रिजेक्ट्स द वेस्टर्न पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन बिकॉज instability in Myanmar directly threatens the security and economy of Northeast India. So, see, the idea is that India cannot afford to go against Myanmar. भारत वेस्टर्न पॉलिसी की तरह सैंक्शंस नहीं लगा सकता, अपने संबंध तोड़ नहीं सकता, बिकॉज हमने देखा ना कि म्यांमार इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, बिकॉज instability in Myanmar directly threatens the security and economy of Northeast India, and that's why भारत को एक pragmatic approach, dual track
एंगेजमेंट फॉलो करना है, जस्ट लाइक चाइना. सो बॉर्डर सिक्योरिटी एंड इंसर्जेंसी इज अ वेरी बिग फैक्टर. वी ऑलरेडी नो दैट भारत जो है वो 1640 किलोमीटर का पोरस बॉर्डर शेयर करता है विद म्यांमार. इंडिया शेयर्स 1640 kilometer porous border with Myanmar. So that's why New Delhi it maintains a structural relationship with the state administration control, that is the military junta of Myanmar, to ensure cooperation in flushing out insurgent groups that uses Myanmar's jungles as safe havens. So New Delhi maintains a relations structural relationship with military junta of Myanmar, that is the SAC, to ensure cooperation, because New Delhi wants cooperation from the military junta in flushing out insurgent groups, flushing out insurgent groups that use Myanmar's jungles as safe havens. तो भारत के सामने border security and insurgency is a big challenge, and that's why New Delhi has to maintain a structural relationship with the military junta. Also, there is a need for infrastructure preservation, wherein India must protect its critical infrastructure projects in Myanmar. So, India must protect Kaladan multimodal transit transport project. India must protect India, Myanmar, Thailand trilateral highway, and that's why the government has to act sensibly. And भारत को डुअल ट्रैक एंगेजमेंट फॉलो करना है, जहाँ पे कि एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी अच्छे संबंध बनाए रखना है. एंड द रीजन फॉर दैट इज एज द जनता हैज लॉस्ट कंट्रोल ऑफ की बॉर्डर लैंड्स, एज जनता, एज द मिलिट्री जनता हैज लॉस्ट कंट्रोल, इंडिया हैज अडॉप्टेड, क्योंकि अब सिर्फ मिलिट्री जनता के भरोसे बैठना सही नहीं रहेगा. इंडिया हैज अडॉप्टेड by opening direct channels, by opening direct communication channels with anti-Janta forces like the Chin National Front, and by the dual track engagement, this basically allows India to manage the massive influx of refugees entering Mizoram, and this allows India to maintain local stability along its immediate border. तो हमने देखा कि किस तरीके से जो डुअल ट्रैक एंगेजमेंट है, इट इज एनेबलिंग इंडिया, इट इज अलाउिंग इंडिया, क्योंकि अगर भारत एंटी जनता फोर्सेस के साथ भी अच्छे संबंध बनाता है तो इंडिया कैन मैनेज द मैसिव इन्फ्लक्स ऑफ refugees entering Mizoram, and it can also maintain local stability along its immediate border. So this was the dual track engagement, the pragmatic approach. अब यहाँ पे हमको एक और बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन करना है. यहाँ पे भारत के सामने एक एथिकल डायलमा था. देयर वाज अ एथिकल डायलमा इन फ्रंट ऑफ इंडिया. देयर वाज अ एथिकल डायलमा. सो द एथिकल डायलमा वाज कि क्या भारत को डेमोक्रेसी सपोर्ट करना चाहिए या फिर नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ है डेमोक्रेसी, एक तरफ है मिलिट्री रूल. सो द एथिकल डायलेमा वाज, शुड इंडिया सपोर्ट और चूज
द मिलिट्री रूल, द मिलिट्री जनता इन म्यांमार, और द डेमोक्रेटिक रूल? क्योंकि आइडियली तो इंडिया शुड सपोर्ट डेमोक्रेटिक रूल, क्योंकि भारत भी एक डेमोक्रेसी है. सो बीइंग अ डेमोक्रेसी इट शुड सपोर्ट द डेमोक्रेटिक रूल just like the West. So idealism says that India should support the democratic rule and hence it should totally oppose the military rule in Myanmar. But भारत ऐसा नहीं कर सकता है. So India, so in this ethical dilemma, India adopted the pragmatic approach, wherein it also supported the military rule. It established structural relationship with the military rule in Myanmar, and also it negotiated, or it opened direct channels with the anti-Janta forces as well. So that's the pragmatic approach followed by the Indian government. So we call it pragmatism. So pragmatism is like like a practical approach. It's a flexible approach. It is pragmatism is like rising above the idealism. क्योंकि हर समय आइडियलिस्टिक अप्रोच काम नहीं करती है. देर आर इंस्टेंसेस वहां पे हमको कूटनीति भी अपनानी पड़ती है. अगर हम डिप्लोमेसी की बात करें तो वहां पे कूटनीति भी अपनानी पड़ती है. सो दैट इज अ प्रैग्मेटिक अप्रोच. तो भारत ने मिलिट्री गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेटिक स्टेक होल्डर्स दोनों के साथ संबंध बनाए रखे. सो दैट्स द strategic balance maintained by the Indian administration.